As you see here, plane of symmetry. Yes, I got the answer. I'll see who was answering this. Dhruv, you gave answer C and then D. Actually, C is not plane of symmetry. That is center of symmetry. It's center of symmetry because if you'll see in this, the two groups, this carboxyl groups are there. Center you can see here. Center is like, if you'll go like this, see center we are talking about here. Even for, say if you have this OH, so here center. We want plane of symmetry. So plane of symmetry, your answer D is correct, because in this we can observe that plane of symmetry here. Right, plane of symmetry, because the groups which are there, this phenyl group, right, this 2 and here carboxyl group. So we observe plane of symmetry. Next, now we'll see which of the following compounds display geometrical isomerism. So out of this all, which can show geometrical? Geometrical is like cis isomer and trans isomer. So out of these four, which can show cis and trans? And how to identify that? In this, you have done cis and trans for butene. Generally, the structure which we write is CS3, CH, double bond CH, CS3. And this compound shows cis and trans. Right? You have done this. Cis and trans, you have done like carbon-carbon double bond is there, and the two structures possible for this butene is like if we have both the methyl groups on same side, and in this methyl groups are on opposite side. And you know this very well, that is cis isomer and trans isomer. Like this cis isomer, and here this is trans isomer. So similarly, what is common, like how to understand cis and trans? In trans, you'll have two identical groups on opposite side. So just observe in this, out of four, in which case you can get trans isomer. This option A can give this. You are taking more time to answer this geometrical isomerism. It is difficult for you to answer. I gave example also. Say this. Saqib
gave A, which is not correct. Dhruv, no. B is also incorrect here. See, I think you didn't get this point here. That is, see, two hydrogen atoms are there. In this B, see, two halogen, that is bromine, two hydrogen. If two atoms of same type are there, so they cannot show this cis and trans or geometrical isomerism. Here also, if you check, 2Br is there. So answer for this is C. Two different, like, if you'll see this to this carbon, what is attached here, as you see, hydrogen and methyl. Similar atoms are not there. One is methyl group, other is a hydrogen atom. That we can consider X and Y. See, two hydrogen, if I'll consider X and methyl Y, I'll write here. That is C double bond C. And if we have here X and this is Y here, this side X and Y. So X and Y should not be same. If they are same, then you will not get this geometrical isomerism. So that you have to take care, because in this A, B, and D, that X and Y is same. Okay. We'll see this next now. Which of the following can exhibit cis-trans isomerism? Out of this all, which can show this? Yes. Now for this, X and Y, do you see here in A? Option 8 is there. No, X, Y is not there. Only X you can say one side, another side Y. Say for A, if we'll talk about, we can say here, that is left side X and right side Y. So you will not get geometrical in case of A. And what about C? Carbon-carbon double bond is not there in case of C. D also it is not there. See, answer for this is B, because for B you can write cis and trans, that is X and Y is there. Say I can consider X and Y like this. Say X is for your chlorine and Y for H. So we can write here this C double bond C. Say if we have Cl same side here, and other side opposite side hydrogen, this is isomer. And trans we can write it like this, opposite side. Cis isomer and trans. Yes. Sorry. Okay, we'll see the next one now.
Which of the following structures permits cis-trans isomerism? Yes, easy to answer this. Try to find out if XY is there. No, Jonathan, it cannot be A. Similar type we are getting here, X2 is there. XY should be there actually. See, X2 is there here. I'll underline that. Say this. Same, similar this here. Yeah, D is correct answer now. Yes, you're right. Because here X2, here we have Z2, here we have X2, right? So this is the correct answer for this. See this example. Geometrical isomerism is not possible. Out of these all four, which example will not show geometrical isomerism? Yes, Jonathan. Dhruv, Parmesh is there. आइवन ने बहुत टाइम से आंसर नहीं किया है. नहीं मिल रहा है बेटा. ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सिस ट्रांस आपको पहचानने में प्रॉब्लम हो रही है. सिस ट्रांस पहचान लेना तो इजी लग रहा है. कौन नहीं शो करेगा? अभी तक हम लोग दिखा रहे थे कौन शो करता है. कौन नहीं शो करेगा? जिसके पास x2 होगा, 2 सिमिलर एटम्स होंगे. अभी 2 सिमिलर अगर आप ढूंढ रहे हैं तो जरा आप ए बी सब देखिए. यहाँ पे आपको पता चलेगा. मैंने आपको बोला था कि अगर आपका ये x है, यहाँ पे y है ना? या फिर इधर आप ऐसे एक्स वाई देख सकते हैं. अदर साइड ऑल्सो यू हैव है ना dissimilar like Cl Br are there, same atoms are not there. यहाँ पे भी सब जगह आपको एक्स वाई दिखाई दे रहा है. दिस ओनली इन केस ऑफ डी. आप डी में आ जाओ बेटा. डी में नहीं दिख रहा है. शायद कुछ गलती हुई है आपसे. डी में जरा देखिए. डी में देखो दो सिमिलर एक साइड में है ना. ये कैसा हो गया पता है? इट इज लाइक अगर मैं बोलूं तो ये हो गया आपका एक्स वाई सी और डबल बॉन्ड और सी. डोंट कंसिडर दैट वो जो मैंने एक्स मिथाइल के लिए लिखा है ना, फॉर एक्स मिथाइल विच आई हैव गिवन, तो अदर साइड. okay, I'll write Z2 will be better to say here this type. See, similar it is there. So this cannot show. Right? Which of the following does not exhibit geometrical isomerism? एक बार वापस आप ट्राई करो जरा. कोशिश करो समझने का कि कौन नहीं शो करेगा. और नहीं शो करना बहुत इजी होता है पहचानने के लिए. बिकॉज
दो सिमिलर होते हैं, वहां पे एक जैसे होते हैं। आप एग्जैक्टली कहाँ चेक करने वाले हो आपको पता है? जहां पे डबल बॉन्ड है वो आपको चेक करना है। Like this double bond is there. Across the double bond, you have to see this. Check this. Yes, where is this carbon-carbon double bond in this? As you see here also carbon-carbon double bond is there. ये सारे जहां भी कार्बन-कार्बन डबल बॉन्ड है ना, आप जरा चेक करो कि एक्स वाई है या फिर नहीं शो करना, मतलब X2 होना चाहिए, फिर Y2 या Z2, है ना? अगर कोई भी एक साइड में इफ यू आर गेटिंग X2 या आपको Y2 मिल रहा है या Z2 जो भी ऐसे मतलब है ना ग्रुप्स है, अगर सब सिमिलर दिख रहे हैं ना तो इसका मतलब नहीं शो करेंगे। तो अगर आप चेक करें यहाँ पे इन दिस ऑल, चलिए ऐसे ड्रॉ करते हैं, तो जरा आप देखिए कि अक्रॉस द डबल बॉन्ड कौन से ऐसे जगह पे आपको ऐसा X2 Y2 या Z2 दिखाई दे रहा है। बेटा सर्च करेंगे, ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे तो पता चलेगा आपको कि इन विच केस। बेटा आपको डी में ऐसा दिखाई दे रहा है, पर डी में तो अलग अलग चीजें दिख रही हैं बेटा। यहाँ पे डी वाले के लिए मैं बना सकता हूँ आपके लिए, डी आपके लिए मैं शो करके दिखाऊं डी कैसा दिखेगा। डी आपका दिखने वाला है, अगर आप डी देखना चाहते हैं तो इट इज सी डबल बॉन्ड सी है। हम लोग ऐसे भी शो कर सकते हैं कि एक साइड में मिथाइल आ गया एंड अदर साइड इट इज C2H5 एंड दिस साइड वी कैन राइट H, और यहाँ भी हम लिख सकते हैं H, है ना? तो आपको ये जरा देखना पड़ेगा कौन से केस में नहीं आता है मालूम है। जैसे कि इफ यू हैव एग्जांपल लाइक दिस, समझो आपके पास यहाँ भी H है और यहाँ पे भी H है, एंड दिस साइड इफ यू हैव CH3 और यहाँ पे आपका C2H5 है। अगर ऐसा कोई स्ट्रक्चर दिया रहेगा ना तो फिर आपको नहीं नहीं शो करेगा। क्यों नहीं शो करेगा? बिकॉज इन दिस, ये देखिए दो सिमिलर एटम्स ऐसे दिखाई दे रहे हैं ना, तो ये नहीं शो करेगा, ये नहीं शो करता है, ये दिखाएगा आपको। तो ऐसा अगर आप सर्च करोगे इन दिस, अगर आप ढूंढोगे तो आपको एक जगह पे दिखाई दे सकता है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए यहाँ पे इन दिस, ये जो CH2 दिख रहा है, सो 2 हाइड्रोजन इज देयर यहाँ पे डबल बॉन्ड के पास, देखो आप, तो यही आपका एग्जाम्पल होगा। रेस्ट ऑल व्हाट यू हैव टू कंसीडर, यू नो, यहाँ पे देखिए H है, पर H के साथ में दिस बिग ग्रुप इज अटैच्ड, यहाँ पे H है तो दूसरा मिथाइल है। एक्स वाई होना जरूरी है। अगर आप देखें तो आपको, अगर आप इधर ये सारा ग्रुप आप एक्स ले लो और वाई ले लो यहाँ पे, अगर मैं हाइड्रोजन को वाई रखूं तो ये मेरा एक्स है। पर ये जो सब बी वाला आप देख रहे हैं ना, इन केस ऑफ बी, बी अगर आप देखें तो बी में चलिए इसे देखते हैं। यहाँ बी वाला जो आपका केस है, तो अगर मैं ऐसा करूं कि मैं यहाँ पे एक्स कंसिडर करूं और वाई, ये आपका एक्स है और वाई आपका हाइड्रोजन है, तो यहाँ मुझे Y2 नजर आ रहा है। अगर हम देखेंगे यहाँ पे, एक मैं आपको बताता हूँ जरा, ये देख लीजिए यहाँ पे Y2 है। तो वही हम आपको बोल रहे हैं कि आप जरा ध्यान रखना, दिस X2 Y2 Z2, अगर ऐसा कुछ भी नजर आता है तो नहीं शो करेगा। सो दैट यू हैव टू टेक केयर, है ना?
ऑल राइट, मैं लिखता हूं जरा। सिस में हम देखते थे सेम साइड, ग्रुप सेम साइड होता था ना आपका, और ट्रांस में आप देखते थे अपोजिट साइड, टू सिमिलर ग्रुप। राइट। तो आपका जो ई जेड है गिवन बाय हाई प्रायोरिटी एंड अच्छा अपोजिट साइड एंड सेम साइड, I'll give this एग्जाम्पल। जब तक आप देख लो जरा, एक पहला फर्स्ट एग्जाम्पल यू जस्ट गो थ्रू। आप देखिए, आप सिस ट्रांस जब तक समझने का ट्राई करो आप, मैं आपको कुछ और बढ़िया सिखाने वाला हूँ जरा। This EZ, I'll write here. We have place here. Yes. The EZ which we are starting, actually now we are going to see here in this. This your E is antigenin. In this, the higher priority will be opposite side. We'll check that higher priority, how to get that. Higher priority opposite side. And this Z is Zuzamen. In this, higher priority, same side. Okay. So now we'll see. We'll see in this the next example that how to get that higher priority, and if it is opposite side or same side. Okay. So in this example, very first example, if you'll see, so higher priority means out of two, you have to find out, like say this H and CS3. The higher priority is CS3 because carbon atomic number is 6. And other side, if you'll see, the higher priority is this. So if I'll remove this H now, only higher priority if we'll consider, just see their opposite side. As we were doing earlier, we used to say this trans, but now as I gave this full form of EZ, suppose if it comes in your mind trans, okay, because trans and cis we know very well, we have done this. What we can do is, see another hint I want to give here, because generally it comes in mind trans. So how to write it if it is E configuration or Z configuration? Okay. So you can do this way here. For this opposite is E, and for this, for same it is Z. And how to remember? Suppose if trans it came in my mind now here, trans. So trans means what will, which configuration will say? E. Do one thing, you keep in mind this way. मैंने ऐसा सोचा है
कि हम लोग इसको याद रखने के लिए अच्छा और इजी कैसे कर सकते हैं। देखिए बताता हूँ। ई फॉर एनिमी, आपका एनिमी अपोजिट साइड में है, अपोजिट साइड जो आपके अपोजिट में है वो एनिमी है। और जेड जो है ना, जेड हम लोग बोलते हैं ना ए टू जेड, ए टू जेड, तो ए टू जेड सेम है, सेम है, ए टू जेड सेम, जनरली ए टू जेड same, A to Z. So A means Z actually. I want to go for the Z. तो Z आप रखना for same, या फिर एक आप याद रखोगे ना, अपोजिट रहेगा तो E, एनिमी अपोजिट साइड। तो आपके लिए बहुत इजी होगा टू आंसर दिस, लाइक जैसे यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं, हमारा सबसे पहला वाला क्या मिल रहा है, अपोजिट है ना, तो अपोजिट में कौन होता है, एनिमी होता है, तो आपका ये E हो जाएगा। हम लोग को पहचानना है E एंड Z, सो हाउ टू गेट दैट E एंड Z, कैसे पता चलेगा E और Z, तो हो गया ना बेटा, E टू Z, E पता चल गया, अपोजिट रहेगा तो E, और नहीं रहा तो Z। ये एग्जांपल देखोगे ना 20 सेकंड, आप पक्का समझ जाओगे कि एग्जैक्टली मुझे क्या बोलना है। अब इसे प्रायोरिटी देखते हैं, सबसे बड़ा कौन है, यहाँ तो Br बड़ा है, ये साइड में Br बड़ा है, अदर साइड अब देखिए, अदर साइड मतलब मैं ये दोनों में कंपेयर करने बोल रहा हूं, बिटवीन हाइड्रोजन एंड मिथाइल कौन बड़ा है, सो कार्बन, बिकॉज उसका एटॉमिक नंबर 6 है, हाइड्रोजन का 1 है। तो अब आपको मिल चुका है, नाउ यू गॉट दैट प्रायोरिटी। सो अब देखिए दोनों रेड ऊपर की तरफ दिख रहा है, मतलब ये अपोजिट नहीं है, अपोजिट नहीं है मतलब एनिमी नहीं है, तो इसको इसको हम लोग फिर क्या करेंगे, फिर इसको हम लोग बोल देंगे जेड। इस तरह से आपको पहचानना है। अब जैसे देखो बेटा, अभी समझ में आ जाता है ना जब भी कोई कॉन्सेप्ट की कैसे पहचानना है। मैंने आपको ऊपर यहाँ पे पहले बता दिया था कि देख लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है, एंटीगनेन में हायर प्रायोरिटी अपोजिट साइड, एंड जुजामेन में है हायर प्रायोरिटी सेम साइड। लेकिन ये कभी कभी आपको ध्यान रखने में अगर प्रॉब्लम हो, तो मैंने ये जो आपको आइडिया दिया ये काफी काम आ सकता है, कि जो भी आपको अपोजिट दिख रहा हो तो आप समझ जाना एनिमी है, ई है, तो आप जल्दी से उसको आंसर कर पाओगे। क्या होता है मालूम है, क्विक जल्दी आंसर करना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो ठीक है। तो बेटा चलो थर्ड वाला देखते हैं, शायद से आपको जरा और इजी और समझ में आ जाएगा कैसे करना है। तो अगर ये दोनों में कंपेयर करें, इफ विल कंपेयर बिटवीन दीज टू, ये दोनों में कंपेयर करें, तो क्या लग रहा है आपको, विच वन इज विच कम्स इन प्रायोरिटी, कौन बड़ा ग्रुप है ना, जरा बेटा ये फाइंड आउट करने की कोशिश करें जरा। क्या लगता है आपको, सी ट्रिपल बॉन्ड सी को आप बड़ा बोलना चाहते हैं, या फिर यहाँ पे सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू। एक्चुअली बेटा दो बातें होती है, जब आप आईयूपीएससी करते हो तब प्रायोरिटी सीरीज अलग होती है, तभी आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को आप प्रायोरिटी देते हो, बट नॉट इन दिस। क्योंकि याद है हम लोग ने ये जब भी हेलोजन डेरिवेटिव कर रहे थे, इन दैट प्रायोरिटी के लिए आपको आर एस कॉन्फ़िगरेशन व्हेन वी वर डूइंग, तो आपने देखा था यहाँ पे कार्बन 6 है, और 6 के पास अगर मैं बोलूं तो this 6 is bonded to, ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो ट्रिपल बॉन्ड इज देयर, मींस यू कैन से 6 6 6, और डबल बॉन्ड के लिए क्या हो जाएगा, दो बार ही 6 आएगा। सो अगर ये दोनों में अगर आप कंपेयर करते हो तो ट्रिपल बॉन्ड को ही आपको प्रायोरिटी में रखना होगा। तो इन दिस, आउट ऑफ दिस टू, प्रायोरिटी आपको मिलने वाला है, ये आपका प्रायोरिटी है, दैट इज दिस। अब अपोजिट साइड में देखें तो ऑब्वियसली आपको यहां मिलेगा, क्योंकि कार्बन देख लीजिए, कार्बन के पास दो कार्बन है, 6 6 है, वैसे इस कार्बन के पास भी 6 6 दिखाई दे रहे, है ना। ओके, जस्ट आप देख लीजिए।
if we'll check in that carbon connection, that number, say this is as we do in our that rotation which we have done RS. So this carbon 6 is bonded to 6 and 6 here, and same we have here, 6 is there connected to 6 and 6, right? Then further if we'll check, so you have here 2 hydrogen, 1 bonded, and here we have 1 right? So अगर हम लोग सिंपल वे में देखें, अभी और सारे रूल्स मुझे आपको बताने हैं, सो दैट विल डू इन आवर नेक्स्ट क्लास. आज मैं आपको सिंपल जरा सिखाना चाह रहा हूं पहले. सो ये आपका बड़ा ग्रुप है. सो अगर दो बड़े ग्रुप आपको अपोजिट में दिखे तो मैंने आपको बोला था कि you have to write E. ठीक है, तो इस तरह से आपको ग्रुप देख के पहचानना है. सो और ज्यादा आगे देखते हैं. द नेक्स्ट एग्जांपल विल सी फोर्थ. आप फोर्थ या फिफ्थ दो और देखेंगे ना तो बहुत क्लियर हो जाएगा. और नेक्स्ट क्लास और ज्यादा रूल्स देखेंगे हम लोग, एंड विल ट्राई टू सॉल्व रिमेनिंग 10 मोर प्रॉब्लम्स ऑन दिस. तो बाय द टाइम फोर्थ एंड फिफ्थ जरा आप ट्राई करके बता दीजिए मुझे. बहुत इजी है, फोर्थ एंड फिफ्थ बहुत जल्दी आंसर कर सकते हो आप. यस, फोर्थ के लिए आंसर कर रहे हैं आप. सबसे बड़ा ग्रुप क्या मिल रहा है? जैसे यहाँ पे आयोडीन मिल रहा है बिकॉज इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है. अदर साइड आप देखिए तो क्लोरीन दिखाई दे रहा है. अपोजिट साइड है तो अपोजिट है, तो जैसा मैंने आपको बताया था कि आपको ई आंसर करना है. और अगर हम लोग यहाँ पे देखें फिफ्थ वाले में, सो अगेन अगर आप प्रायोरिटी सीरीज चेक करोगे, सो यू विल गेट दिस. आपका यहाँ पे Br atomic number is more than chlorine, and this ये दोनों ग्रुप में अगर आप कंपेयर करते हो तो ऑब्वियसली आपका अल्डिहाइड ग्रुप इज बल्कियर ग्रुप. सो आप देख लीजिए कि बल्कियर ग्रुप किधर दिखाई दे रहा है? अपोजिट साइड में है, ये देख लीजिए. और जब अपोजिट में होगा तो आपको ई आंसर करना होगा. Yes. Any doubt is there? Yes, Dhruv, you say triple bond. Yeah, actually प्रायोरिटी लाइक अगर आप ये चेक करना चाहेंगे कौन सा बड़ा ग्रुप है, so as I told you this triple bond is there, means your 6 is bonded to triple in the sense what? 6, 6 and 6. While in double bond it is not like that.